بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، انسان کی زندگی خوشیوں اور غموں کا امتزاج ہے۔ کبھی دل میں امید کے چراغ جلتے ہیں تو کبھی مایوسی کے اندھیرے گھیر لیتے ہیں، مگر ایک چیز ہے جو ہر حال میں مومن کے دل کو سنبھالے رکھتی ہے، اور وہ ہے دعا۔ دعا وہ طاقت ہے جو بندے کو عرش الہی سے جوڑ دیتی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی کیفیت، آنکھوں کے آنسو اور روح کی پکار ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ یہ وعدہ خود رب العالمین کا ہے، مگر اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، میں نے اتنی دعائیں کی لیکن لگتا ہے قبول نہیں ہوئے۔ آخر قبولیت کی نشانی کیسے پہچانی جائے؟ آج ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ پہلی نشانی، دل میں سکون اور اطمینان کا اتر جانا۔ جب آپ دعا کرتے ہیں اور دعا کے بعد دل پر ایک عجیب سا سکون، اطمینان اور ہلکا پن محسوس ہو، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ تمہاری پکار سنی گئی ہے۔ یہ سکون دنیاوی اسباب سے نہیں آتا، یہ ایک رحمانی کیفیت ہے۔ بعض اوقات حالات ابھی تک ویسے ہی ہوتے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوا ہوتا، مگر دل کہتا ہے اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب فرشتے آپ کی دعا کو لے کر عرش پر جا چکے ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت آپ کے دل پر اترتی ہے۔ حضرت ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب بندہ دعا کرتا ہے تو یا تو اللہ فوراً دے دیتا ہے، یا اس سے بہتر وقت پر دیتا ہے، یا اس سے بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے، اور اس دوران بندے کو دل کا سکون عطا کرتا ہے۔ یہ سکون ایک مومن کی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ دنیا کے خزانے سے قیمتی ہے، کیونکہ دنیا کا مال دل کو نہیں بھر سکتا، مگر اللہ کی یاد اور دعا کا یقین دل کو بھر دیتا ہے۔ فرض کریں ایک شخص قرض میں ڈوبا ہوا ہے، وہ رات کو تہجد میں اٹھ کر روتے ہوئے دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے اس تنگی سے نکال دے۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے دل کا بوجھ اتار دیا ہو۔ قرض ابھی بھی باقی ہے لیکن پریشانی کم ہو گئی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے، تمہاری دعا سن لی گئی ہے، صبر کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ سکون کیسے حاصل ہو؟ یہ سکون صرف اس دل کو ملتا ہے جو دعا کرتے وقت اللہ کی قدرت پر مکمل یقین رکھتا ہے، جلد بازی نہیں کرتا، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اور دعا کے بعد بھی اللہ سے امید باندھے رکھتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے ہی دل سکون پاتے ہیں۔ یہ پہچان لو کہ دل کا یہ سکون قبولیت کی پہلی خوشخبری ہے۔ اللہ کی قدرت بڑی عجیب ہے۔ کبھی کبھی ہم ایک مسئلے کے حل کے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں، اور اچانک ایسا راستہ کھلتا ہے جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہی قبولیت کی ایک واضح نشانی ہے کہ دعا نے زمین و آسمان کی تقدیر کے دھارے کو بدل دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا۔ وہ آیت صرف رزق کے بارے میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر مسئلے پر لاگو ہوتی ہے۔ اللہ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک بہن برسوں سے بے اولادی کی دعا کر رہی تھی، ڈاکٹروں نے بھی امید چھوڑ دی، لیکن ایک رمضان کی رات اس نے پوری عاجزی سے دعا کی۔ کچھ مہینوں بعد اچانک خوشخبری ملی، اور ڈاکٹر حیران تھے کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، جب وہ چاہے تقدیر کا نقشہ بدل دے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے اور ساتھ نیک اعمال، صبر اور اللہ پر توکل کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے ایسا سبب پیدا کرتا ہے جو عام عقل سے ماورا ہوتا ہے۔ یہ کبھی کسی انسان کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی حالات کے بدلنے سے، اور کبھی دشمن کے دل کو نرم کر دینے سے۔ قبولیت کا اشارہ، جب آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں اچانک ایسی آسانی آئی ہے جس کا آپ نے منصوبہ نہیں بنایا تھا، یا ایسے لوگ آپ کی مدد کو آ گئے ہیں جو پہلے دور تھے، تو سمجھ لیں کہ یہ آپ کی دعا کا اثر ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دعا صرف مانگنے کا نام نہیں، یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جب ایک بندہ بار بار اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے دل کو پاک کرنے لگتا ہے۔ یہ پاکیزگی کبھی دل میں گناہوں سے نفرت کی صورت میں آتی ہے، اور کبھی نیکی کی محبت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر،
यकीनन नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। जब बंदा दुआ के साथ इबादत में मुखलिस हो जाता है तो अल्लाह उसके दिल को बुराई से बचाने लगता है। ये एक गैर महसूस लेकिन अजीम नामत है, क्योंकि कबूलियत का मतलब सिर्फ दुनियावी फ़ायदा नहीं बल्कि रूहानी तरक्की भी है। हज़रत हसन बसरी रहमा अल्लाह के पास एक नौजवान आया और बोला, हज़रत, मैं दुआ करता हूँ कि मेरे हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ रही। आपने फरमाया, देखो, क्या तुमने ये महसूस किया कि गुनाहों में कमी आ गई है, दिल में नेकी की चाह बढ़ गई है? नौजवान ने कहा, जी हाँ, पहले मैं गुनाहों की तरफ खींचता था, अब दिल नहीं चाहता। हजरत हुस्न बसरी ने मुस्कुराकर कहा, तो समझ लो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है, क्योंकि ये सबसे बड़ी कबूलियत है कि अल्लाह ने तुम्हें अपनी मासियत से बचा लिया। क्यों ये निशानी अहम है? कुछ दुआएं हमें दुनियावी फायदा देने से पहले हमारे ईमान को मजबूत करती हैं। जब अल्लाह हमें गुनाहों से बचा देता है तो वो हमारी जिंदगी के लिए असल कामयाबी का दरवाज़ा खोल देता है। कबूलियत का इशारा, अगर आपने दुआ के बाद महसूस किया कि आपकी इबादत में मजीद ज़ौक़ आ गया है, बड़े दोस्त या बड़े माहौल से दिल हट गया है, नेक लोगों की सोहबत अच्छी लगने लगी है, तो ये अल्लाह की तरफ से खामोश पैगाम है कि तुम्हारी दुआ असर कर रही है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, जिंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे लम्हात आते हैं जब हम समझते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। मसला पहाड़ की तरह सामने खड़ा होता है, दिल घबरा जाता है और इंसान बेबस हो जाता है। मगर इसी वक्त जब दिल से दुआ निकलती है और थोड़ी ही देर में हालात पलट जाते हैं, यही कबूलियत की सबसे नुमायां निशानी है। अल्लाह ताला फरमाता है, फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रन। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये आयत महज तसल्ली नहीं बल्कि हकीकत है। जब बंदा दुआ के जरिए अल्लाह से जुड़ जाता है तो अल्लाह मुश्किल के अंदर ही आसानी पैदा कर देता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में कैद कर दिया गया। ये अंधेरों पर अंधेरे का मंजर था, समंदर का अंधेरा, रात का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, लेकिन वहां से भी दुआ निकली, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और फौरन अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर डाल दे। ये दुआ के बाद मुश्किल से आसानी आने की सबसे वाज़ेह मिसाल है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई शदीद परेशानी थी और अचानक उसका हल ऐसा आया कि आपने खुद सोचा भी नहीं था, या कोई ऐसी रुकावट हट गई जिसको हटाने के लिए आप महीनों कोशिश कर रहे थे, तो ये इस बात की अलामत है कि आपकी दुआ अर्श तक पहुंची और अल्लाह ने फौरन आपके लिए आसानी पैदा कर दी। बाज़ औक़ात हम दुआ करते हैं, दिल से करते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन दिन, महीने बल्कि साल गुजर जाते हैं और वो दुआ पूरी नहीं होती। ऐसे में शैतान आकर कान में कहता है, देखा, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही। लेकिन याद रखो, दुआ की कबूलियत में ताख़ीर अल्लाह की नाराज़गी की नहीं बल्कि उसकी रहमत की अलामत भी हो सकती है। अल्लाह जानता है कि कब देना बेहतर है, किस वक्त देना तुम्हारे लिए खैर का सबब है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, वासा अन तकरहुआ शय्यन वहुवा खैरुन लकुम। हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। ये आयत हमें बताती है कि हम सिर्फ लम्हा देखते हैं, मगर अल्लाह पूरी जिंदगी का नक्शा देखता है। फर्ज करें कोई शख्स दुआ करता है कि या अल्लाह, मुझे फौरन ये कारोबार मिल जाए। अल्लाह इस दुआ को रोके रखता है, क्योंकि अगर अभी कारोबार मिला तो नुकसान होगा और कुछ अरसे बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, तब मिलेगा और कामयाब होगा। ये ताख़ीर दरअसल हिफाजत है, सज़ा नहीं। इसलिए जब दुआ में ताख़ीर हो तो मायूस ना हो, बल्कि ये समझो कि अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतरीन लम्हा महफूज कर रहा है। ये भी दुआ की कबूलियत की एक सूरत है, बस फ़र्क ये है कि ये कबूलियत वक्त के साथ सामने आती है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, दुआ मांगना आसान है, लेकिन दुआ कबूल होने के बाद उसका हक अदा करना हर किसी के बस की बात नहीं। अक्सर लोग अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह अता कर देता है, मगर फिर शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें मजीद दूंगा। ये आयत हमें ये सबक देती है कि शुक्रगुजारी न सिर्फ दुआ का हक है बल्कि मजीद नामतों के लिए दरवाज़ा भी है। शुक्र अदा करने के तरीक़े: 1.
ज़बानी शिक्र, ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना और लोगों को बताना कि ये अल्लाह का फजल है। 2, अमली शक्र, नामत को अल्लाह की इताअत में इस्तेमाल करना, गुनाह में नहीं। 3, दिल का शक्र, दिल में ये यकीन रखना कि ये सब कुछ सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी है, अपनी अक्ल या ताकत का नतीजा नहीं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कैद से रहाई मिली और मिस्र का खजाना उनके स्पर्द हुआ तो उन्होंने सबसे पहले अल्लाह की हम्द व थना बयान की और अपनी ताकत को अदल व इंसाफ के क़याम में लगाया। ये दुआ की कबूलियत पर शक्र का सबसे बेहतरीन नमूना है। याद रखो, दुआ कबूल होने के बाद अगर शुक्र अदा न किया जाए तो कभी कभी वही नामत आजमाइश में बदल जाती है। इसलिए दुआ के बाद का शुक्र दुआ से भी ज्यादा अहम हो जाता है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमने उस सफर में दुआ की कबूलियत की 4 बड़ी निशानियां जानी। 1, दिल का सुकून और इत्मीनान कि दिल गवाही दे कि अल्लाह ने सुन लिया है। 2, हालात का गैर मुतवक्का तौर पर बेहतर होना कि रास्ते खुद ब खुद खुल जाएं। 3, गुनाहों से बचाव और नेकी की तरफ माइल होना कि अल्लाह हमें अपनी मासियत से दूर कर दे। 4, मुश्किल के फौरन बाद आसानी का आना कि अंधेरे के बाद रोशनी छा जाए। और फिर हमने ये भी जाना कि दुआ में ताखीर रहमत भी हो सकती है और दुआ कबूल होने के बाद शुक्र अदा करना कितना ज़रूरी है। याद रखो, दुआ सिर्फ ज़बान से निकले अल्फाज का नाम नहीं, बल्कि ये दिल की हालत और ईमान की ताकत का नाम है। अल्लाह के यहाँ कोई दुआ ज़ाये नहीं जाती, या वो फौरन मिल जाती है या बाद में बेहतर वक्त पर मिलती है, या उसके बदले कोई मुसीबत टल जाती है या आखिरत में उसका इज्र मिलता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह से दुआ करता है अल्लाह उसे या तो फौरन दे देता है या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बना देता है या उससे कोई मुसीबत हटा देता है। अल्लाह से मांगते वक्त दिल में पूरा यकीन रखो कि वो सुन रहा है। जल्दबाजी ना करो, सब्र करो, शुक्रगुजार रहो, क्योंकि शुक्र के बाद मज़ीद अता मिलती है। और हमेशा याद रखो कि असल कामयाबी ये नहीं कि दुआ से दुनियावी फ़ायदा मिल जाए, बल्कि असल कामयाबी ये है कि दुआ से अल्लाह का क़र्ब हासिल हो जाए। मेरे अजीज़ों, आज ही किसी गोशा तन्हाई में बैठो, हाथ उठाओ, आंखें बंद करो, दिल से पुकारो और यकीन रखो तुम्हारी आवाज़ आसमान को चीर कर अर्श तक पहुंच रही है और तुम्हारा रब तुम्हें कह रहा है, मैं तुम्हारे करीब हूं और तुम्हारी दुआ कबूल करने वाला हूं। उम्मीद है आप सबको ये दिलचस्प वीडियो पसंद आए होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जज़ाकल्लाह खैरा।